وہ ہے ماں کی شان. کیا ہے؟ شاباش. ماں کی شان. آج دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی شان کیا ہے. اس کو ہمیں بائبل مقدس میں سے بیان کرنا ہے کہ ماں کی شان ہے کیا. یہ کتنے لوگ ایسے جانتے ہیں کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے؟ جی شاباش, زبردست, ویری گڈ. دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ماں کی بہت بڑی شان ہے, اور دوسری طرف انسان ہونے کے ناطہ سے ہم کبھی کبھی اپنی ماں کو بے عزت کر دیتے ہیں, ماں کو گرا دیتے ہیں, ماں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماں کی کیا ہے؟ شان ہے. اس میں آج ہم نے سیکھنا ہے کہ اگر ماں کی شان ہے تو پھر ماں کی شان میں ہم نے کسی نے بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا ہوگا. جتنے لوگوں کی ماں ہے وہ سن لے غور سے, کیونکہ یہ تمہاری بزرگہ ماں اس جہان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے. میرے عزیزوں, ماں کی شان کو ہم بیان کرنا شروع کریں تو یہ بہت دن بھی لگ سکتے ہیں, لیکن ہم تھوڑے وقت میں اس کو سیکھیں گے. بائبل مقدس کے اندر ماں کی بہت زیادہ عزت پائی جاتی ہے. پھر اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ باپ کی بھی عزت پائی جاتی ہے. خروج کی کتاب پرانے عہد نامہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ مقدس موسیٰ نے کہا تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا, کیونکہ باپ کی بھی اتنی عزت ہے جتنی ماں کی عزت ہوتی ہے. لیکن آج ہم نے زیادہ ماں پر ہی سیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ رات کو ہم 12 بجے ایک چینل دیکھ رہے تھے. آج کیونکہ مدر ڈے ہے, مدر ڈے کے اندر چینل پہ بہت زیادہ ماں کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے. ہم رات کو دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری مائیں جن کی اولاد جو ہے, جب مائیں بزرگ ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, تو اپنی ماں کو کسی سینٹر پر چھوڑ آتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے نہیں, ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے, بلکہ کسی سینٹر میں چھوڑ آتے ہیں. جب چھوڑ آتے اس کے بعد ان کی خبر گیری بھی نہیں لیتے. لیکن جب کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ماں کی بہت بڑی شان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون سی شان ہے؟ جب جس ماں نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, جب وہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ بار بار سنبھالتی ہے, گیلی جگہ پر بچے کو اٹھاتی ہے, سوکھی جگہ پر لٹاتی ہے, گیلی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے. اور وہ ماں جب بڑی ہو جاتی ہے, کیا ہم اس ماں کی یہ قدر کرتے ہیں کہ اس کو کسی ایسے سینٹر پہ چھوڑ آتے ہیں کہ ہم ماں جی آپ کی خدمت نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم آپ کی اتنی خدمت کریں. میرے عزیزوں, اس کو جب بات کو چھیڑیں گے بہت لمبی ہوگی, میں آپ کو شارٹ کٹ جو کی باتیں بتانے لگا ہوں. تو بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی شان کیا ہے, بہت سارے لوگ لفظ بولتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ جنت ہے. میرے عزیزوں, یہ بھی ایسا نہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہو, کیونکہ جنت صرف میرے خدا کے پاس ہے, جنت میرے یسوع کے پاس ہے. جنت کا راستہ جو ہے وہ مسیحا ہے, کیونکہ جنت بھی ماں کے قدموں میں نہیں, ایسا ہرگز نہیں. کیونکہ ماں جنت کا راستہ دکھا سکتی ہے, ماں جنت کا راستہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ماں جنت نہیں. میرے عزیزوں, ابھی ہم سیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے بیٹے بیٹیاں جو اپنی ماں اور باپ کو تنگ کرتے ہیں, جب وہ چلے جاتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں دنیا کو, پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایک بار ہمارے سامنے آ جائیں, ہم بات کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ماں کی شان, آئے ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ جو اپنی ماں کو بہت ذلیل کرتے ہیں, ایسے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو اپنی ماں کو مارتے ہیں, پیٹ
पीटते हैं, जख्मी कर देते हैं। खुरूज की किताब निकालिए मेरे साथ, 21 बाब की 15 आयत। खुरूज 21 बाब की 15 आयत। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे लोग भी हैं जब मां जिंदा होती है तो मां को मारते हैं, पीटते हैं, जख्मी करते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बाइबल मुकद्दस में अभी हम सीखेंगे। क्या ऐसे लोग सुकून की जिंदगी पाएंगे जो अपने बाप पर या अपनी मां पर हाथ उठाते हैं, जो अपनी मां पर जुल्म करते हैं, जो अपनी मां को मारते हैं, पीटते हैं, बुरी बातें करते हैं? क्या ऐसे लोग सुकून पाएंगे? मैंने बार बार चर्च के अंदर अनाउंसमेंट किया था कि कोशिश करें कि सब लोग अपनी औलाद को लेकर आए, लेकिन मैं फिर ये कहना पड़ता है मुझे कि शर्म की बात है कि आप फिर अकेले आ गए हैं। इसलिए आप माँ बाप की भी गलती है कि अपनी औलाद को कभी खुदा के घर में लेकर नहीं जाते, इसलिए औलाद भी जो है फिर माँ बाप पर हाथ उठाती है। मैंने बार बार अनाउंसमेंट किया कि आप सब अपनी औलाद को लेकर आए ताकि आज का कलाम जो है आपकी औलाद के लिए हो, ताकि आपकी औलाद कलाम को सुनकर जो है आपकी इज्जत करना शुरू कर दे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम बड़ी मुश्किल से खुद खुदा के घर में आते हैं। कैसे औलाद को लेकर आएंगे? आइए जरा हवाला देखिए, पढ़िएगा भी। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे, जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बाप को भी मारते हैं और अपनी माँ के गले भी पड़ जाते हैं। ये बात किसी और किताब के अंदर नहीं, ये बात मैंने खुद नहीं लिखी, ये बात किसी आम किताब के अंदर नहीं लिखीगी। ये बात किस किताब के अंदर है? ये क्या है? ये खुदा का कलाम है। ये कहां से लिखी गई? खुदा के कलाम से। क्या लिखा है? पढ़िए आगे से। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे, और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे, वो कतई जान से मारा जाए। वो कतई जान से मारा जाएगा। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा एक हवाला है। लूका 1 बाब की 28 आयत। एक नौजवान था, वो रोजाना अपनी मां को सताया करता था और वो किसी और औरत के साथ मोहब्बत करता था और वो बहुत ज्यादा उसकी मोहब्बत में डूब गया। उस औरत ने कहा कि मैं आपके साथ शादी तब करूंगी जब तू अपनी मां का दिल निकाल कर लाएगा। वो उसकी मोहब्बत में डूब गया, उसकी मोहब्बत में पागल हो गया, अपनी उस मां की मोहब्बत को भूल गया जिसने उसको जन्म दिया था। ऐसा हुआ कि वो अपने उस शादी के नशे में रात को मां जब सोई है, मां के सीने पर एक छुरा मारकर अपनी मां के दिल को निकाल लिया। जब दिल को निकालकर भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा अपने उस महबूब की तरफ, ऐसा हुआ कि रास्ते में जाते जाते गिर जाता है और उस कहानी के अंदर यह लिखा है, जब गिरता है दिल अपने हाथ में रखा हुआ है, मां का दिल जो है, मां का कलेजा अपने हाथ में रखा हुआ है। जब गिरता है तो दिल और दूर जाकर गिरता है तो दिल से उस कलेजे से आवाज आती है कि मेरे बेटे, तुझे कुछ चोट तो नहीं लगी, तुझे कुछ चोट तो नहीं लगी, तो ठीक तो है। मां का प्यार ऐसा है, मां मर भी जाती है, उसका दिल भी निकाला जाए, दिल से आवाज आती है कि मेरे प्यारे बेटे तुझे कुछ हुआ तो नहीं। और मां की शान ऐसी हो तो भी हम मां के ऊपर जुल्म करें, मां को गालियां दें, मां को मारे, मां को पीटे और एक तरफ कहें हम मां से प्यार करते हैं। ये कैसी शान है कि बेटा अपनी महबूब की कहने पर अपनी मां का दिल निकाल ले। ये मां की शान नहीं, मां की शान ये है, बाइबल मुकद्दस में जब हम सीखते हैं तो लिखता है कि मां मुकद्दसा मरियम की बात कर ले। मुकद्दसा मरियम
उसकी शान को जब हम बयान करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मुकद्दसा मरियम अभी मां बनने वाली है। लिखा है कि उस मां को आसमान से फरिश्ते आकर जो है उसे सजदा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी शान को बयान करते हैं। मेरे अजीजों लिखा यह है कि मां की शान क्या है? मां की शान ऐसी है कि खुदा के फरिश्ते आकर जो है उससे सलाम करते हैं, उससे सजदा करते हैं। मां की शान आम सी बात नहीं है। मां को आकर फरिश्ते सजदा करते हैं। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? आज क्यों हम बर्बाद और तबाह होते जा रहे हैं? हम ना मां की इज्जत करते ना बाप की इज्जत करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ मां बाप भी ऐसे हैं जो ढीठ किस्म के, वो खुद भी खुदा का कलाम नहीं सुनते और अपनी औलाद को भी नहीं सुनने देते। इस वजह से उनकी औलाद उनके गले पड़ जाती है। मुकद्दसा मरियम को क्यों, उसको क्यों फरिश्ते सजदा करते हैं? आइए जरा एक हवाला देखते हैं। अगर काश कहीं आपके अंदर भी खुदा का बेटा यीशु हो तो आपके बच्चे क्या खुदा के फरिश्ते आपको भी सजदा कर सकते हैं। हालेलुया। बात की समझ लगी है? नहीं लगी। मुकद्दसा मरियम को क्यों फरिश्ते आकर सजदा कर रहे हैं? जी, कि उसके पेट में कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आपकी जिंदगी में भी खुदावंद यीशु मसीह हो तो आपको आपके बेटे और आपकी बेटियां जो है आपकी पूजा करनी शुरू कर दें, क्योंकि आपके अंदर भी यीशु नहीं है। इस बात को भी याद रखना है। आइए एक हवाले को देखिए। क्योंकि मुकद्दसा मरियम को खुदा के फरिश्ते क्यों सजदा करते हैं, क्यों उसकी तारीफ करते हैं, क्यों उसके आगे आकर झुक जाते हैं? जी। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको, सलाम तुझको, जिस पर फजल हुआ है, जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है, खुदावंद तेरे साथ है। आमीन। हालेलुया। बैठिएगा। फरिश्ता ने अंदर आकर क्या कहा? सलाम तुझको, क्योंकि तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु तेरे पेट में है। मैं इसलिए तुझे सजदा करता हूं, मैं इसलिए तेरी तारीफ करता हूं। तेरे आसमान को छोड़ा है, हम तेरे आगे आकर झुक रहे हैं, हम तुझे सजदा करते हैं। इसलिए कि सजदा हो सकता है कि मुकद्दसा मरियम को ना होता। किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? किसकी वजह से सजदे हो रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का बेटा यीशु हो तो मैं कहता हूं कभी आपकी औलाद आपसे दूर नहीं हो सकती। आपकी औलाद आपके पांव चूमती है। आज क्यों औलाद मां बाप की इज्जत नहीं करती, मां बाप औलाद की इज्जत नहीं करता? आज वजह यह है, हम कहते हमारी इज्जत की जाए, चाहे हम आगे से गालियां देते हो खुद। हमारी इज्जत की जाए कि मैं मां हूं, मुझे सजदा किया जाए, मेरे पांव के नीचे जन्नत है, चाहे खुदा अंदर ना हो। ऐसा पहले बनना पड़ेगा कि हमें कोई सजदा करे। ऐसा पहले होना पड़ेगा कि कोई हमें झुककर सलाम करे। मेरे आशीष गौर से सुन लीजिए, ये बात दोनों तरफ से है। औलाद भी तब सजदा करती है जब हमारी जिंदगी के अंदर यीशु होता है। जब यीशु नहीं तो हमें सजदा भी कोई नहीं करेगा, हमें सलाम भी कोई नहीं करेगा। कहेगा कि ये बदतमीज बुढ़ा जा रहा है, बदतमीज माई जा रही है। मेरे अजीजों, मां की शान ऐसी है। आज ये दो बातों को सीखना है कि क्यों हमारी औलाद हमारी इज्जत नहीं करती, क्यों अगर मां बाप अच्छा है तो औलाद इज्जत नहीं करती। ये दो बातों को आपने लेकर चला है। पहले तो मां बाप को बदलना पड़ेगा, जिन्होंने औलाद को पैदा करना है वो पहले वो बदलेंगे, फिर अपनी औलाद को सिखाएंगे। जब वो सीख जाएगी तब वो उनकी औलाद जो है घर से निकलने से पहले अपनी मां के पांव को चूम कर जाएगी। हालेलुया,
हालेलुया। बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं तो अपनी माँ के पांव चूम कर निकलते हैं कि माँ मेरे लिए दुआ करना, मैं काम पे जा रहा हूं। सो माएं सारा दिन बैठकर दुआ करती है अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, दुआएं खैर करती रहती है। आते हैं तो फिर आकर मां के कदमों में गिर जाते हैं। मां शुक्र है कि मैं सलामती से घर आ गया हूं। मेरे अजीजों, आज इस बात को गौर से सुन लीजिए। मजमूर क्या था? मां की शान। बच्चे सुन ले सब। अगर आप अपनी मां पर हाथ उठाएंगे या बाप पर हाथ उठाएंगे तो हमेशा के लिए मर जाएंगे। अपने बाप और मां की इज्जत करेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। इस बात को याद रखना है। क्या करेंगे बच्चों? बच्चे कितने हैं? जरा नौजवान हाथ दिखाइए अपना। शाबाश। क्या करेंगे अपने मां बाप के साथ? शाबाश। क्या करेंगे? अपने मां बाप की क्या करेंगे? शाबाश। क्या करेंगे? अपने बाप की और अपनी मां की क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। तब हमें इज्जत मिलेगी खुदा की तरफ से। अगर किसी मां के अंदर खुदावंद यसू मसीह है तो वो भी बहुत सारी बरकत पाएगी।